Good morning, dear students. Welcome back in the class. These are the last questions of the exercise 8.2. This is question number 4th. In question number 4th, ABCD is trapezium in which AB parallel to DC and BD is diagonal. A is the midpoint of AD. A line is drawn through E which intersect BC at F. Then we have to prove F is the midpoint of BC. So given trapezium ABCD in which AB parallel to DC, A is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB. ये E के पैरेलल हमने AB के पैरेलल ड्रॉ किया है, which intersect BD at G and BC at F. To prove हमारा FC equal to BF. So for that we can start triangle DAB. Taking triangle DAB, E is the midpoint of AD. This is given. EG parallel to AB. This is also given. ये भी given है. Therefore DG is equal to BG by converse of MPT. MPT में हमने यही converse में we have learned that line drawn through the midpoint parallel to another side bisect the third side, so these two will be equal. Now since AB parallel to EF ये given है, AB parallel to DC ये भी given है, तो it means DC will parallel to EF. ये line इसके parallel होगी, it means DC will parallel to GF because we will going to use this concept. Give name second because G lies on EF. EF पैरेलल है तो GF भी पैरेलल होगा क्योंकि G उस पर लाई करता है. नाउ इन ट्राइंगल BCD को कंसीडर करते हैं. G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD. ये हमने प्रूव किया है फर्स्ट में क्योंकि दोनों इक्वल है. इट मीन G इज द मिड पॉइंट एंड DC पैरेलल टू GF फ्रॉम सेकेंड. सो दिस इज द लाइन थ्रू द मिड पॉइंट पैरेलल टू द अनदर साइड, सो बाइसेक्ट द थर्ड साइड. सो वी कैन राइट देयरफॉर CF is equal to BF. हम लिख देंगे therefore CF is equal to BF, hence prove. यही हमें प्रूव करना है. Now the question number 5th. ABCD कोई पैरेललोग्राम है. ABCD E and F are the midpoint of side. AB and CD ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है. Show that line segment AF and EC trisect BD. Trisect means all the three part will be equal. Given to prove you can write from the questions. Firstly we will prove ACF is a parallelogram. Proof लिखेंगे since AB parallel to CD, opposite side of parallelogram, opposite side of parallelogram AB parallel to CD, opposite side of parallelogram, since E is the midpoint of AB, therefore AE is equal to half of AB. Similarly
CF is equal to half of CD, but AB is equal to CD, opposite side of parallelogram. Therefore इसको हम 1 नंबर देंगे, 2 नंबर, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, टू से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी. हाफ ऑफ ए बी बिकम ए, हाफ ऑफ सी डी बिकम सी एफ. यहां पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए ई पैरेलल टू सी एफ, ऊपर ही लिख देंगे. इसको हम 1 नंबर देंगे, 2 नंबर, 3 नंबर. फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड रीजन लिखेंगे सिंस ई लाइज ऑन ए बी एंड एफ lies on CD. From first and fourth AECF is a parallelogram. This is P point, this is Q. Therefore AF parallel to CE, opposite side of parallelogram, therefore EQ parallel to AP and QC parallel to PF. Since P lies on AE, AF and Q lies on CE, AF C के ये अपोजिट साइड पैरेललोग्राम क्योंकि तो ये पैरेलल है, तो ये लाइन इसके और ये लाइन इसके पैरेलल होगी क्योंकि ये पॉइंट इस पर लाई करते हैं. Now we can consider triangle ABP. In triangle BAP, E is the midpoint of AB and EQ parallel to AP. from इसको हम 5 नंबर दे देंगे. फिफ्थ, फ्रॉम फिफ्थ, therefore Q is the, or you can write directly therefore PQ is equal to BQ. Converse of MPT, इसको 6 नंबर दे देंगे. नाउ इन ट्राइंगल DCQ, F is the midpoint of CD and PF parallel to QC from fifth. Therefore DF DP is equal to PQ. This is 7. Converse of MPT.
from 6th and 7th dp is equal to pq is equal to dq, hence prove, यही हमें प्रूव करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, number 6, show that the line joining the midpoint of opposite side of quadrilateral ABCD is a quadrilateral. Show that line segment joining the midpoints of opposite side, ये इसको मिड पॉइंट है ये, और ये इसके मिड पॉइंट है इन साइड के, PQRS, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दिस क्वेश्चन बिकम द फर्स्ट क्वेश्चन, हम इनको ज्वाइन कर देंगे। हम डायगोनल AC को भी ज्वाइन कर देंगे, हम इसको बाद में ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव किया था, तो सिमिलरली यू कैन प्रूव PQRS इज ए पैरेललोग्राम। देन आफ्टर हम ये आप नो नीड टू इरेज इट, नाउ यू कैन ज्वाइन दीज टू। आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 डू एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। यहां तक आपको फर्स्ट को देख करके करना है। उसके बाद आपको लिखना है सीधा ही देयरफॉर OQ इज इक्वल टू OS और OP इज इक्वल टू OR। आपको रीजन लिख देना डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बस इतना ही लिखना है आपको, बस रिजल्ट लिखना है। तो ये आपका 6 क्वेश्चन होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, ABC is a triangle, right angle at C. हम राइट ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, C पर 90 डिग्री एंगल फ्रेम करना है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपो AB, ये इसका मिड पॉइंट है AB का, पैरेलल टू BC। हमने यहां से BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, ये M पॉइंट है। पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D, ये D पर इंटरसेक्ट करती है इसको। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव गिवन आप ऐसे लिख लेंगे। टू प्रूव में फर्स्ट रिजल्ट हमारा होगा D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB AC, ये इसका मिड पॉइंट होगा। सेकेंड रिजल्ट होगा MD परपेंडिकुलर टू AC, यानी ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा 10 सेकेंड में। और थर्ड में CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। प्रूफ लिख देंगे, सिंस M, इसको हम पहले लिख देंगे इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो हम लिख देंगे AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। एक नंबर लिखकर छोड़ देंगे, वी कैन यूज बिकॉज डेफिनेटली इट विल बी यूज्ड, इसको कहीं ना कहीं हम यूज करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ACB
M is the midpoint of AB and DM parallel to BC CB. This is given. Therefore AD is equal to CD converse of MPT. ये इसका कन्वर्स होगा, तो हमारा ये पहला रिजल्ट पूरा जाता है. सो डी इज, सो देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. पहला रिजल्ट आ गया. नाउ वी नीड टू प्रूव दिस वन इज 90 डिग्री. तो अब हम लिखेंगे सिंस DM पैरेलल टू CB दिस इज गिवन, ये गिवन है. तो देयरफॉर एंगल CDM प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180. रीजन लिख देंगे को इंटीरियर एंगल. को इंटीरियर एंगल्स होंगे, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये इनको इंटरसेक्ट करेगी, तो ये दोनों का सम 180 होगा. बट एंगल DCB इज इक्वल टू 90, ये गिवन है क्योंकि राइट एंगल है ये. हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे फर्स्ट में. तो देयरफॉर एंगल CDM इज इक्वल टू 90 डिग्री. इसको आप सेकंड और थर्ड यूज नेम दे सकते हैं, तो या देयरफॉर लिख देंगे, नो नीड टू गिव रीजन. और आप लिखना चाहें तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड. तो देयरफॉर वी कैन राइट दैट DM, क्योंकि ये 90 डिग्री है, इट मीन्स MD विल परपेंडिकुलर टू AC. For the third result, now in triangle ADM and triangle CDM, angle AD is equal to CD. Since D is the midpoint, angle ADM is equal to angle CDM, each 90. DM is equal to DM, common. Therefore triangle ADM is congruent to triangle CDM by SAS rule. तो we get therefore AM is equal to CM, CPCT. CM or AM half of AB. So using first we can write, therefore last result, therefore AM CM, AM is equal to CM is equal to half of AB. ये हमारा तीसरा रिजल्ट होगा. यूजिंग फर्स्ट लिख देंगे इसको. हैंस प्रूफ. थैंक यू.